Thanks all of you for attending this webinar Sunday morning. I can see a lot of names which are familiar from the existing CFA classes, level 1, level 2, level 3. I can also see a few names that seem to be familiar, as in they were past students in CA, CFA, FRM batches. But right now, when I take the classes, I don't see their names. That means they're cleared. Also, there seem to be a lot of non-SSCI community, maybe young college students, or maybe equity research analysts, investment banking analysts, private equity, private credit analysts, who know deep inside their heart that the only thing that is preventing them from achieving their aspiration is the lack of deep rooted skills. Nobody acknowledges this. I don't know why. I have, as an academician, always acknowledged my limitation, whether it's cognitive limitation, whether it's practical knowledge limitation, or any other thing. And I'm striving day after day in uplifting myself. It has happened with me throughout the period I was a student, and even now it happens every day. But I see that students level pay, professionals level pay, the fact that you don't know about something is something that is not acknowledged. Analyst stack is something which has come to fore as a result of years of effort, where I felt that हम students को आधे रास्ते तक पहुंचा रहे हैं. Those who are completing CFA level 1, level 2, level 3, or those who have done CA with me, those who have done FRM with me, we are able to make him pass the 3 examinations with really good skills, really good marks. But at the end of the day, we are not able to complete the entire journey. कि काश वो वेल प्लेस्ड हो पाए इंडस्ट्री में, उसका एस्पायरिंग जॉब लग जाए एंड वो आगे और प्रोग्रेस कर सके. तो ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी है, दिस इज वेयर आई हैव ब्रॉट एनालिस्ट स्टैक इनटू द पिक्चर. Those who know me, they have to think about 2 words related to my personality. Number 1 is integrity, number 2 competence. Faith कि सर डिलीवर करते हैं, कॉम्पिटेंस कि सर में ब्रेन्स है, एंड वो कॉम्पिटेंस हम लोग को ट्रांसमिट करते हैं. It has definitely been experienced in academic ventures, जो भी आप programs मेरे से किए, and now into the practicality, you will find a different surge happening. I can't explain. I'm waiting for it. 15th March. Now, just to kick off this session, let me tell you that Analyst Stack program जो है वो एक professional तरीके से कराया जाएगा, because of which there will be a lot of material that will be shared with you. Sometimes it may be overwhelming. बहुत ज़्यादा deep material होगा. Sometimes you may decide that मैं उसका केवल summary version पढ़ूंगा. That's upon you. But just to give you a taste of what happens, let me create a story the way we start. अभी 1st Feb को जब budget आया, can we open that REC PFC stuff? So this is a kickoff, a warm-up that we have in classes na. Power Finance Corporation, Rural Electricity Corporation. इन दोनों के मर्जर के बारे में मैं जरा सा डिस्कशन कर रहा हूँ. Obviously, I can't take a lot of time in discussing the same, but let's understand the situation. There is a buy-side firm, and वो buy-side firm में जो आपका senior है, he approaches you on Friday, 7th, and tells you that यार ये Power Finance Corporation, Rural Electricity Corporation, इनका जो merger का बात budget पे हुआ था, for those who don't know, 1st Feb को
in the budget, Nirmala Sitharaman had announced that there'll be a restructuring of PFC REC. In fact, the exact words of our announcement we would like to see. Can we go to the transaction statement? Transaction analysis. Let's go to our speech. Yeah, niche. Stop. Nahi, niche. Yeah. Please have a look at this. The announcement Feb 1, 2026. Under para 43 of the Union Budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the vision for NBFCs for Viksit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption. In order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs as a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. तो ये language उन्होंने बोला, and this was an important pulse for the markets. If you look at the language, जो मैंने यहाँ language को pick up किया है, she did not use the word merger, she used the word restructure. She said something like, as a first step, that means there is more to come. She talked about scale, she talked about efficiency. She did not talk about cost reduction or cost savings. Anyways, let me explain the same. Basically, in my simple language, ये जो power grids बन रहे हैं, transmission lines, solar power projects, thermal projects, इन सब का financing जो है is basically what Power Finance Corporation does. It's an NBFC जो infrastructure lending में है, and on the liability side, it is raising funds via bonds. Even foreign funds raise करता है, it has a certain cost, and the difference is the NIM, the net interest margin. Rural Electrification Corporation जो है, it is basically financing state level electricity projects to DISCOMs, to state electricity boards, to state governments. ये दोनों के दोनों फाइनेंसिंग स्पेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्पेस पे, और इन दोनों को कंसोलिडेट करके रीस्ट्रक्चर करके मर्ज करने की बात हो रही है. द फैक्ट इज दैट वो जो आपका सीनियर है वो ये बोलना चाह रहा है कि यार अपने को क्या पीएफसी को लॉन्ग, आरईसी को लॉन्ग, दोनों को लॉन्ग करना चाहिए, या अपने को पीएफसी को लॉन्ग आरईसी को शॉर्ट करना चाहिए, या आरईसी को लॉन्ग पीएफसी को शॉर्ट करना चाहिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए. इज देयर एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर? यू आर नॉट सपोज्ड टू बी एन एक्सपर्ट. हो सकता है आपको पावर सेक्टर का डीप रूटेड नॉलेज है भी नहीं, बिकॉज आपने उसमें 5-7 ईयर्स स्पेंड नहीं किए, बट यू आर सपोज टू हैव अ थॉट प्रोसेस कि आप इस चीज को कैसे अप्रोच करोगे. यू हैव टू प्रोवाइड एन इन्वेस्टमेंट मेमो ऑन मंडे, मे बी सैटरडे संडे पीएफसी आरईसी के मैनेजमेंट से आपका मीटिंग अरेंज हो रहा है, तो व्हाट क्वेश्चंस विल यू थ्रो टू देम? हाउ विल यू अप्रोच दिस सिचुएशन? नाउ टिपिकली जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सीएफए सीए कर रहे हैं, दे विल फील टोटली, अभी हो रहा भी होगा बहुत जन के साथ, दे विल टोटली फील ये क्या डिस्कशन हो रहा है यार, आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू इट. मतलब पूरा क्लूलेस एज टू व्हाट इज हैपनिंग. नाउ व्हेन इट हैपेंस, in that case there is a difficulty in the other person actually wanting you to be there in the team, because the thought process has to come. आप कैसे अप्रोच करोगे? फॉर एग्जाम्पल पावर सेक्टर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सेक्टर जो है, उस सेक्टर में व्हाट आर द केपीआईज, व्हाट इज द सेक्टर का स्टडी? लेट अस गो टू द डॉक्यूमेंट्स प्लीज. पीछे तो यहाँ पे इफ यू गो टू द केस स्टडी समरी, नीचे नीचे नीचे, या तो यहाँ पे वी हैव स्टेज 1, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. यू कैन सी आई कांट गो इनटू द इंडिविजुअल सोर्सेज. ठीक है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, फाइलिंग्स, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट एंड सो ऑन. स्टेज 2, आपको उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रोसेस द डेटा, स्ट्रक्चर द डेटा प्रॉपर्ली. स्टेज 3, यू हैव टू एनालाइज द डेटा. स्टेज 4, यू हैव टू सिंथेसाइज एवरीथिंग, इसमें क्या क्या है. अब ये क्या ऑब्वियसली बहुत डीप है, तो आप इस तरह समझेंगे नहीं, तो लेट मी एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम क्या करेंगे आप. So what you will do is that you will, number one, have to do a sector ka study.
इन द लिमिटेड टाइम कि सेक्टर में क्या केपीआईज है. फॉर एग्जांपल, लेंडिंग बिजनेस में व्हाट इज द लोन बुक का ग्रोथ, पीएफसी का लोन बुक ग्रोथ क्या है, आरईसी का लोन बुक ग्रोथ क्या है, दोनों का एनपीएस कितना है, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस पीएफसी का कितना है, ज्यादा है थोड़ा, आरईसी का कम है, दोनों का प्राइस पर शेयर किस पे ट्रेड हो रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, दोनों का ईपीएस क्या है, गवर्नमेंट का ओनरशिप दोनों कंपनीज में क्या है. तो यू विल गेट टू नो गवर्नमेंट ऑलरेडी पीएफसी में करीब 56% ओन करता है एंड पीएफसी आरईसी में करीब 53% ओन करता है. तो अकॉर्डिंगली इफ द मर्जर वेयर टू हैपन एंड इफ इट इज अ स्वैप डील, तो उस केस में आरईसी के शेयर होल्डर्स विल बी इश्यूड पीएफसी का शेयर्स. देयर आर सम पीपल इन सीएफए लेवल 2 एंड इन सीए हु हैव डन मर्जर्स विद मी, चिप के मर्जर्स किया हुआ है, जहां पे वी कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, बेस्ड ऑन ईपीएस, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर, और सबसे अलग अलग एक्सचेंज रेशियो आते हैं. ठीक है. तो जो टारगेट कंपनी है जैसे आरईसी, उसका बुक वैल्यू पर शेयर काफी ज्यादा है, तो वो चाहेगा एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर. बट जो दूसरा कंपनी है पीएफसी, वो चाहेगा उसका शेयर प्राइस के बेसिस पे आए. तो व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव. ठीक है. इन द केस ऑफ सच टाइप ऑफ मर्जर देयर इज अ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कॉन्सेप्ट. होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कि जो पावर फाइनेंस कंपनी, वो तो ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी है आरईसी का, इट हैज अ 53% स्टेक. तो व्हेन द एक्विजिशन हैपेंस, तो इन दैट केस जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है वो डाइल्यूट होगा, जिसके कारण वैल्यू क्रिएट होगा. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी डिस्काउंट है, बड़ी फर्म है, अच्छे से फंड्स रेज कर पाएगी, दे मे बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी. ओके, नेक्स्ट टाइम निफ्टी में इंक्लूड हो जाएगा, तो उस केस पे पैसिव फंड फ्लोज होगा. ठीक है. गवर्नमेंट का क्या रेगुलेटरी एस्पेक्ट यहाँ पे है, बिकॉज फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी 50% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट का होना चाहिए. तो क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट का ओनरशिप 50 से नीचे गिरने वाला है. आरबीआई का लेंडिंग नॉर्म्स कहाँ पे ट्रिगर होता है. इन द पास्ट जब ऐसा हुआ है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ्स दैट इट टेक्स फॉर द ट्रांजैक्शन टू फ्रैक्टिफाई इफ इट डज. व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व, डील रिस्क क्या है. बहुत सारे सीएफए लेवल 2 स्टूडेंट्स डील रिस्क से रिलेट कर पा रहे होंगे. तो ये सब थ्योरेटिकल नहीं है जो आप एग्जाम में कर पा रहे हो और आपका राइट हो गया एंड यू स्कोर 90% इन द एग्जाम. दिस इज प्रैक्टिकल कि आप क्या करोगे. ठीक है. यू मस्ट हैव डन 15 क्लासेस ऑफ हेज फंड विद मी, बट आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट दैट. ओके, दिस इज इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटजी. ओके, 101. प्रॉब्लम ये है कि सिंस दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट दैट, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. इसका 87 पेजेस का डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि कैसे कैसे करेंगे. ठीक है. देयर इज अ डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ 87 पेजेस. पॉइंट इज दैट 87 पेजेस कौन पढ़ेगा, हम लोग तो एक चैप्टर 87 पेजेस का नहीं पढ़ते. दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज दैट कम से कम आपके पास थरो एनालिसिस तो होना चाहिए सारी चीजों का, द फ्लो ऑफ द इवेंट्स एंड एवरीथिंग. So, what I wanted to say to my students, especially who are attending, is that there is a huge gap between what the industry demands versus full screen karna. There is a huge gap between what the industry demands versus what is stop share. What the industry demands versus what is what you are learning in academic courses. बहुत जोर का gap है, and you are not understanding this reality. People are feeling that just by learning some Excel courses, they will be able to make up the gap, as if जो industry है वो लोग खोज रहे हैं किसको Excel आता है सुंदर से बनाना. Excel is a quintessential requirement. It is the language of finance. Okay, you have to know how to develop the financial model. But the point is that उसके अंदर का जो content है ना, वो content बहुत hollow है, बहुत खोखला है जो मैंने देखा है. उसका reason है deep dive knowledge और उसके अंदर जाने का तरीका और intent is lacking. Analyst Stack program is a program which is trying to teach you this. What people take around 5-7 years perhaps in the industry to learn and understand, this is going to happen in 5-7 months. Yes, it is. Because this program is going to be taken by industry people, not only by me alone. Let me go to a formal presentation and now open Analyst Stack for you. So I prepared a wonderful presentation by my team, okay, to show you in a structured manner Analyst Stack program kya hai, kya nahi hai. Okay, let's start. तो एनालिस्ट टैक प्रोग्राम जो है उसका सबसे मेन रीजन है सर व्हाई दी एनालिस्ट टैक प्रोग्राम. व्हाई. मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड्स को रखूंगा जिससे आप बीच में रीड कर पाए. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई दी एनालिस्ट टैक प्रोग्राम, हु इज इट फॉर,
ठीक है, what makes it different from other programs which are available in the marketplace globally or in India. ठीक है, stay with me. So the point is that जब why का बात करते हैं, there are three reasons as to why the analyst tech program is required. The first reason is that industry phenomenally change हो गया है. The entire landscape is changing. अभी परसों I think Anthropic का नया announcement आया है that they are coming out with tools which can make financial analysis very easy. पहले के जमाने में क्या होता था? Those people who are hired young into an analyst job, whether in investment banking or private equity or in sell side or buy side, those people are supposed to do this data compilation. दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? और वो डेटा कंपाइलेशन क्यों आपसे करवाएगा? Because we have AI and algos which will do it 100 times faster. Those people were supposed to do model maintenance कि नया क्वार्टर का रिपोर्ट आया तो मॉडल को ठीक से बना के वापस से अपडेट करना है. That updation will be done by templating and machine learning. It has been done. And those people were supposed to listen to con call, prepare notes. ठीक है? Those things were done. And that was a proper job जिसमें इतने सारे लोग hired थे. But now all that can be done by NLP, Natural Language Processing, जो अपने CFA में करते हैं. तो जो एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स है ना एनालिस्ट की, वो पूरी चेंज हो गई है. एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, लोग ये समझ रहे नहीं है. मेरे खुद के स्टूडेंट्स ये समझ रहे नहीं है. ठीक है, दे थिंक दैट बस हम लोग अपना CFA कर लेते हैं तो डिग्री हो गया, उसके थोड़ा सा एक्सेल सीख लेते हैं और अपना हो जाएगा. अरे नहीं होगा. कैसे बोलूं आपसे, वो क्लरिकल काम नहीं कराएगा और आप इसके लिए CFA कर रहे भी नहीं है. दैट इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव कि काश आई गेट अ क्लरिकल जॉब. यू मे गेट अ जॉब मे बी एट अ बिग फर्म, ओके, जहां पे आप सोसाइटी ये बोल सकते हैं आई गॉट अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर फर्म, बट यू नो इनसाइड इट कि वो जॉब कैसा होता है. आई मेट सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिल्ली, बॉम्बे, पुणे. ठीक है, एंड आई फाउंड दैट these students, they are working in the best of organization from a society point of view, but they are totally discouraged because they are doing mundane job, and वो job भी at risk है, उस पे growth नहीं है. So the entire industry is shifting. It is shifting in front of us. Okay, they are wanting that you have tremendous skills of taking decisions under uncertainty, understanding the workflows, understanding the practicalities. Okay, so that's the need for analyst tech. The second reason why analyst track is required is that किसी के पास टाइम नहीं है. आप सोच रहे हो कि आप हायर किए जाओगे and they will have proper systems in place to teach you, to provide you orientation. It maximum may happen for a week. कि एक वीक का ओरिएंटेशन आपको मिलेगा. ठीक है, आपको सीधा प्लगइन्स दे दिया जाएगा, सिस्टम्स एक्सेस दे दिया जाएगा, एंड यू आर सपोज टू स्टार्ट परफॉर्मिंग. Understand the reality check जो लिखा हुआ है. Firms expect plug and play analysts who contribute value from their first week. Believe me, ये harsh reality है. And you are thinking that 3 month का मेरा 6 month का orientation होगा. वो जमाना गया. The fund managers, the senior managers, the senior analysts, they have n number of opportunities and n number of work. They can't sit with new hirees. Okay. In fact, we are being approached by a number of firms for the purpose of doing एनालिस्ट टैग प्रोग्राम फॉर देम, सो दैट वो लोग के लिए ऑटोमेट हो जाए. वो लोग जो नए हायरीज को रख रहे हैं ना, दे आर फेड अप. ओके, दे वांट आउटपुट फ्रॉम डे वन, बट दे कांट ट्रेन देम. किसी के पास ट्रेन करने का मौका नहीं है. या आपके सीनियर्स अगर कोई रिलेटेड होंगे उनसे पूछिएगा एंड यूल गेट टू नो. डे वन से रिक्वायरमेंट है कि वर्क फ्लोज आप जानते हैं, यू कैन एग्जीक्यूट. ओके, रिगरस ड्यू डिलिजेंस, कंट्रीब्यूट टू इन्वेस्टमेंट कमिटी में जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं एंड सो ऑन. ठीक है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम डे वन. So nobody has the time to teach. First reason क्या था? Industry has shifted. Second reason क्या है? Nobody has the time to teach you if you are thinking कि मेरे को सिखाया जाएगा. और जो third reason है, सबसे main, वो है कि जो academics में आप सीख रहे हो और जो industry में required है, number one, to sit on the interview table, and number two, to crack the interview. बहुत जोर का gap है, believe me. रेज्यूमे सबका सेम रेज्यूमे लगता है. एवरीबॉडी इज टेलिंग मी सर रेज्यूमे देखे कैसे, सबका वही CA CFA FRM कुछ किया हुआ है और आने वाले टाइम पे और प्रॉब्लम होने वाले. तो इफ यू हैव डन CFA दैट विल नॉट बी अ डिफरेंशिएटर. अभी इट इज, बट फ्यूचर में इट विल नॉट बी अ डिफरेंशिएटर. अंडरस्टूड? सबका सेम रेज्यूमे है. कुछ इंटर्नशिप किया हुआ है, 2-3 इंटर्नशिप दिखा रखे सब जन, कुछ क्वालिफिकेशन दिखा रखे, और जो वो भी नहीं दिखा रखे उनका तो हाइट्स है. ठीक है, तो इन दैट केस रेज्यूमे में कोई स्पाइक ही नहीं है. देयर इज नो स्पाइक इन द रेज्यूमे. उसके अलावा
when you sit on the interview table, you may impress with your English or behavioral biases, वो जो buttering and all करते हैं, whatever. But when it comes down to openly जब पूछना चालू करते हैं, जैसे आपसे बातचीत हुई और आप पूछे, are you connected with whatever is happening? Did you watch the budget? You said, yes, I watched the budget. Okay, there was an announcement in the budget regarding REC, PFC. Are you aware about it? And आपका चेहरा देखने लायक है. Because you watched the budget from a retail angle. You use retail lingo in your discussion. You talk about the fact that PFC का शेयर का दाम 430 है. You don't talk about the fact that PFC का market cap 1,40,000 crore से. You don't talk about the price multiples at which PFC and REC trade. You don't know about the fact that the NBFC lending and banking price to book value ratio is a very important metric, okay, which can be used for the purpose of regressing with growth rate. और एक quant model आ सकता है जिससे growth rate के basis पे PB ratio क्या होना चाहिए, and you can do the valuation. मैं जा नहीं पा रहा हूँ teaching में, मन कर रहा है जाने का, I'm not able to. ठीक है? So there is a lot of technical deficiencies which will wipe away all the emotional and the behavioral freshness that you show on the table. There is a huge disconnect, believe me, huge disconnect. And I'm just staying in the slides so that you can read the same. And I hope you're reading the same because the slides have been meticulously prepared. मैंने पूरा कल का दिन लग गया in terms of preparing the slide. I had to cancel my level 3 का batch in the evening yesterday in preparing this. So 3 reasons है. पहला reason था industry has shifted. Second reason है nobody is ready to teach you in your job. And number 3 reason hai, there is a wide gap. Okay. Now, in तीनों को analyst stack address करने वाला है. Let's move forward. The solution to all the 3 issues is analyst stack. आपके job लगने का probability will go up by 10 times. And I mean it. आपका already अगर आप job में हैं, ये जो job लगने में जो आपको package मिलता, that will go up by 30 to 50%. Conservatively मैंने 30% यहाँ लिखा है. And if you're already in a job and you want a promotion, believe me, if you know this, whether you are in the IB field, wealth management field, private equity, private credit, public equity, okay, sell side, buy side, family offices, you name it, whichever area you are, analysis का जो main stuff होता है वो same होता है. Let's understand. नहीं मेरे को तो private equity में जाना था. Of course, there are nuances, but the basic pickup of doing deep dive analysis remains the same. So analyst stack is a solution to all the 3 issues which I said. Next. Analyst stack का structure क्या है? ठीक से देख लो भाई. Analyst stack का structure. इसमें मैं जैसे ये 4 है ना, इसमें मेरा मन करता है बोलने का मॉड्यूल 2 के बारे में. If there are 75 sessions, 40 sessions would be on module number 2. Module number 2 केवल उसी को देखो. That is the investing depth. Okay, fundamental equity research. It is not about Excel. कि आपको Excel आता है क्या? आपको format करना आता है क्या? आपको सजाना आता है क्या? It is not that part. That is important, which is in module 1. We'll come to that because that is the language of finance. तो Excel के बिना कुछ नहीं हो सकता है. Of course, आपको Python R आता है तो और बढ़िया. But the point is that basic spreadsheet has to be known. Google Sheets better. ठीक है ना? But module 2 जो investing है, that is beautiful. And module 3 में AI in finance. Let me explain how it will happen. So, I was not going to show, but let me show you the main sheet जहाँ पे हम लोग depth दिखा रहे program का. ठीक है? I'm going to a new sheet. Give me 1 minute. I'm taking you to the master sheet. Yeah. This is the master sheet. देखिएगा. नीचे जाते हैं. नीचे जहाँ पे मॉड्यूल 2 आएगा. No, wait. तो मॉड्यूल 2 में इन्वेस्टिंग 101 एंड द इन्वेस्टिंग प्रोसेस. इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बता दूं. अपने क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग में क्या प्रोसेस है? नंबर 1 आइडिया जनरेशन है. नंबर 2 स्निफ एनालिसिस है कि क्या इस कंपनी में डीप डाइव करना है, गो नो गो. तीसरा डीप डाइव इन्वेस्टिंग. चौथा थीसिस. ओके, 2 पेज 4 पेज का थीसिस बनाना टू प्रेजेंट टू द इन्वेस्टमेंट कमेटी. एंड पांचवा
मॉनिटर एंड होल्ड, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हाउ डू यू सेल, हाउ डू यू डिसाइड हाउ टू सेल, व्हेन टू सेल, ऑल दैट हैज टू बी एक्स एंटी, पहले से रूल्स बनाए हुए हैं, यू आर नॉट लेटिंग योर इमोशंस प्ले अ रोल। अब आइडिया जनरेशन पहले जैसे होता था और अभी जैसे होता है एकदम डिफरेंट है। स्टूडेंट्स को जो पता है आइडिया जनरेशन में, अपने स्क्रीनर में जाएंगे और कुछ कुछ फिल्टर्स लगाएंगे और उससे आइडिया जनरेट हो जाएगा। इट इज नॉट दैट सिंपल। आइडिया जनरेशन में जोर से एआई यूज हो रहा है। तो इन दैट केस यू नो क्लासेस कैसे होगी, आइडिया जनरेशन पहले बताए क्या होता है, उसके बाद वी विल गो टू द थर्ड मॉड्यूल एआई। ओके, थर्ड मॉड्यूल में जाएंगे एआई, नीचे जाना, थर्ड प्रोग्राम में, यस, एआई। और एआई को आप कैसे यूज करेंगे आइडिया जनरेशन में, उसका सेशन होगा। तो पहले आइडिया जनरेशन, उसका कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली केस स्टडी एग्जांपल्स, कुछ भी थियरी नहीं है, ऑल प्रैक्टिकल है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। और दूसरा, एआई इन फाइनेंस से आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज करोगे। उसके बाद स्निफ एनालिसिस, क्या इस कंपनी में डीप डाइव करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट, उसका उसका अंडरस्टैंडिंग वाया केस स्टडी, एंड देन एआई, हाउ वुड यू यूज एलएलएम, हाउ वुड यू यूज प्रॉम्प्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर एंड इंश्योरिंग दैट आप उसको एफिशिएंटली कर पाओ आज जब इंडस्ट्री शिफ्ट हो गया है। वैसे डीप डाइव, तो एवरीथिंग मैंने मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 विल गो ऑन पैरेलली। मॉड्यूल 3 जितना डेप्थ से कराया गया है यहाँ पे, एंड इट इज बीइंग गोइंग टू बी टेकन बाय एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आई इंट्रोड्यूस यू टू द एक्सपर्ट इन सम टाइम। बट the way it will be done is that it is not GPT ka prompting. Yesterday I was talking to an old student of mine, alumni, who is running a PMS, and he was telling me that Kane Technologies, जो है वो करीब 40% गिरा है, ठीक है। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट केन टेक्नोलॉजीज में कोई स्कोप है क्या। तो जैसे ही कॉन कॉल होते हैं ना, तो कॉन कॉल के बाद ट्रांसक्रिप्ट तो अवेलेबल होता है 2-3 दिन के बाद। तो अकॉर्डिंगली ही टुक द कॉन कॉल एंड पुट इनटू जीपीटी दैट इसका ट्रांसक्रिप्ट, इसको ट्रांसक्राइब कर दो। एंड जीपीटी ने क्या किया, उसको ट्रांसक्राइब करने के बजाय वेदांता का ट्रांसक्राइब कर दिया कॉन कॉल। जीपीटी ने वेदांता का कॉन कॉल ट्रांसक्राइब कर दिया। तो अगला आश्चर्य हो गया कि यार मैंने तो इसको केन्स टेक्नोलॉजीज का दिया और इसने वेदांता कर दिया। दैट्स बिकॉज वेदांता का कुछ डिस्कशन ऊपर के चैट में हुआ था। तो जीपीटी बोल रहा है, आई थॉट आई हैड टू डू इट फॉर वेदांता, कोई बात नहीं है। तो इन दैट केस बोला ठीक है, अब इसका कर दो। तो इन दैट केस जीपीटी बोलता है कि क्या बोलते हैं, नो नो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द कॉन कॉल। So this is a problem that many people face with using all the cloud and GPT and whatever, and they face it because it is not that simple. How do you actually design a infrastructure for the purpose of ensuring that जो भी आप AI use कर रहे हो tools, वो लोग एक structured way में आपको output दे दे. It is not a simple exercise. It is an exercise which requires deep-rooted understanding that we are going to cover in AI in finance. Somebody was telling me that AI in finance का आजकल 999 या 99 रुपीज का कोर्सेज होता है। बिलीव मी, 99 रुपीज में AI in finance सीख लो। पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर, मैं तो ये सब यूट्यूब वीडियोस देखता भी नहीं हूँ। पर अगर होता है तो भाई वो क्या होता है, वो अलग ही होगा। ठीक है, मे बी दे हैव सम सीक्रेट। जैसे कोई बोलता है ना कि CFA प्रोग्राम में पूरा का पूरा लेक्चर्स जो है 100-120 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, हमें तो कभी 100-120 आवर्स में एक फिक्स्ड इनकम या डेरिवेटिव कराने में लग जाता है। ठीक है, इन लेवल 1। सो आई नो व्हाट आई मीन। ठीक है, आई होप यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी मीन। ठीक है, can we go back to the original template where we were showing the structure? Yeah. So module 2 is investing. इस investing में value investing, growth investing, इस investing के अंदर जो art of selling, okay, mental models मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग मेंटल फ्रेमवर्क बनता है, एंड उस फ्रेमवर्क से आप बहुत बढ़िया से एनालाइज कर सकते हो इंडस्ट्रीज को। वो सारा मेंटल मॉडल्स मेरे क्लासेस जो किया है ना, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, जो यूट्यूब पे है, व्हाई मूविंग फॉरवर्ड, या तो वो सारे में कई बार मैंने हिंट भी दिया है कि रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग में। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग का जो डेप्थ है, अगर वो टेस्ट करना है आपको कि सर आप बोल रहे हैं ऐसे होता है वैसे होता है, कैन यू जस्ट प्रोवाइड अ टेस्ट ऑफ द सेम। तो यस, आई वांट टू प्रोवाइड अ टेस्ट ऑफ द सेम। आई एम वेलकमिंग यू टू अ मे बी 2-3 आवर का सेशन दिस पर्टिकुलर थर्सडे 8 PM, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ने वाला हूँ, IHCL, इंडियन होटल्स। कि इंडियन होटल्स जो 2020 में लैंग्वेज कर रहा था लो लेवल्स पे, ठीक है,
उसको कैसे एनालाइज किया जाता है? डू वी हैव द डॉक्यूमेंट टू जस्ट शो देम वन ग्लिम्स ऑफ इट? या ये इंडियन होटल्स का केस स्टडी है। ये इंडियन होटल्स का केस स्टडी है, एंड लुक एट द वे इन विच इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इन्वेस्टिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क, आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस मॉडल का डीप डाइव, सर्वाइवल एनालिसिस, क्या आईएचसीएल कोविड को सर्वाइव कर पाएगा, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव मोट, valuation of IHCL at that time standing in 2020, position sizing, because portfolio management bhi, I just forgot. Module 2 may be also a portfolio management when you decide how much percentage of your portfolio to allocate to a particular position, how much to bet. Then the hold period, ठीक है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कब बेचना है कब नहीं बेचना है या एड ऑन करना है। रिजल्ट्स एंड द लेसन्स लर्न, रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क, दैट्स द मेन कैच। कोई बोलेगा सर आप तो पास्ट का आईएचसीएल दिखा रहे, देयर इज अ हाइंडसाइट बायस, और जब मैं नया कंपनी दिखाऊंगा आरईसी पीएफसी तो बोलेंगे देयर इज अ फोरसाइट बायस। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ही ना। द होल पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, आईएचसीएल को सिखाने का पर्पस है कि क्राइसिस इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है क्राइसिस के टाइम पे। ओके, आप कैसे आप डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट। आरईसी पीएफसी में क्या है, इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी कैसे लिया जाता है, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन थ्रू प्रैक्टिकल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन जैसे अपने सीएफए में करते हैं ना, ऑथर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। इट्स ऑल गोइंग टू बी प्रैक्टिकल स्टफ। ओके, तो दिस पर्टिकुलर केस स्टडी आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन थर्सडे 8 PM। ओके, थर्सडे 8 PM, जिनको भी रजिस्टर करना हो रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप काव्या विल शेयर the link with all the participants, in fact even on YouTube जब ये वीडियो जाएगा, so that they can join me in that session। और आज भी जो आरईसी पीएफसी का जो बनाया है नोट वगैरह अगर आपसे शेयर करना है वो, तो आई विल रिक्वायर दैट कम से कम जो यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं दे फिल अप द गूगल फॉर्म सो दैट वी कैन शेयर, बिकॉज मैं अभी आरईसी पीएफसी का 2 घंटा 3 घंटा एनालिसिस कैसे करूं, but you can have at least the document and understand that the quality of depth in this program is unparalleled। You cannot compare it with XYZ globally। Locally तो छोड़ो, ठीक है, you can't compare with XYZ globally। Let's go to the main stuff। So this is Indian hotels का case study standing in 2020। Standing in 2020 जब कोविड हो गया था एंड पूरा का पूरा ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर वाज ब्लीडिंग, तो ऑब्वियसली इंडियन होटल्स वाज आल्सो ब्लीडिंग। हाउ इज इट that everybody else were panicking and the stock went down to rock bottom levels? How is it that you can make up your mind to actually take an investment call in such a stock? AI cannot help in this regard because the conviction has to come from you। Okay, borrowed conviction never helps in investing। तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, द कंप्लीट इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, आइडिया जनरेशन कैसे आता वहां पे बैठ के 2020 में कि स्क्रीनिंग करने से ये थ्रो होता है HCL एज अ पर्टिकुलर पोटेंशियल स्टॉक। What is the status of the hotel industry, the fact that they're moving from a capital heavy model to a capital light model, what is happening in the industry। उसके बाद IHCL का बिजनेस मॉडल, उसका डीप डाइव, उसकी प्रीमियम प्रॉपर्टीज, उसका डिस्कशन, सर्वाइवल एनालिसिस, वहां बैठ के वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट IHCL will be able to survive the COVID crisis, it will be able to survive and come out as victorious। मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव मोट IHCL का, वैल्यूएशन ऑफ IHCL स्टैंडिंग इन 2020 अंडर डिफरेंट सिनेरियोस। ठीक है, पोजीशन साइजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो वुड यू बेट ऑन IHCL, द होल्डिंग पीरियड फ्रॉम परचेज टू आउटकम, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कब सेल करना है कब नहीं सेल करना है, कब उसको बिल्ड करना है, पोजीशन को कितने साल तक होल्ड करना है। मे बी आप टारगेट सेट करेंगे तो टारगेट तो 1 साल में रीच हो जाएगा, वुड यू सेल इट ऑफ और वुड यू होल्ड इट। ठीक है, results and lessons, the replicable framework, how would you in future if you have done this, तो कभी भी फ्यूचर में क्राइसिस होता है यू विल हैव अ फ्रेमवर्क, बिलीव मी। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग IHCL को IHCL पकड़ते हैं, इट्स नॉट IHCL। एक यूट्यूब वीडियो देखेंगे जहां पे राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला ने इन्वेस्ट किया था इन मेड 10 times मनी, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट आप अगर इसका फ्रेमवर्क समझ गए तो नेक्स्ट टाइम जब क्राइसिस होता है, could be a sectoral crisis, could be an economy wide crisis, could be a company crisis,
पेटीएम में क्राइसिस हुआ था, ठीक है? तो इन दैट केस हाउ डू यू डिसाइड इन दोज सिचुएशंस कि क्या आपने उस सिचुएशन में उस स्टॉक में इन्वेस्ट करे, क्या उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा? But very important, if you're understanding, there will be a framework taught so that it can be used by you uh, during your entire life. Believe me, जॉब तो अपने जगह पे है, बट आप पूरी जिंदगी भर ये फ्रेमवर्क यूज कर पाएंगे क्राइसिस इन्वेस्टिंग का. इफ यू वांट टू ज्वाइन मी इनटू दिस, ओके, तो इन दैट केस थर्सडे 8 p.m. okay is the session on this. Is Thursday को 8 p.m. Those who are on YouTube, they have to fill up the Google form so that we can send you the link for joining. Okay, because obviously Zoom वगैरह पे we have limited capacity. Okay, the audience can only be that much, and we only want serious audience. You can't have the urge to learn. Okay, मैंने आपके ये आना चाहिए, काश यार ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे से शेयर हो जाता, काश मैं इसको स्टडी कर पाता ठीक से, ठीक है? काश जो सर आरी आरी से इसका पीएफसी और आरईसी का बोल रहे थे उसका डॉक्यूमेंट मिल जाता, काश उस पे कुछ गाइडेंस मिल जाता, ठीक है? वो सारा का सारा इसलिए वो गूगल फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू ऑल दैट स्टफ. ओके, सो देयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, अगर कोई डरेगा ना यहाँ पे, देखो 106 पेज का हो गया. कैन यू सी दिस? इफ यू सी द नंबर ऑफ पेजेस, 106 पेज का हो गया है, एंड somebody may be intimidated, तो कैसे समझाऊं आपको? बाई साइड में जब एक स्टॉक के ऊपर एनालिसिस होता है ना, दे रियली डू रियली रियली डीप डाइव एनालिसिस, बट जब रूम में एंटर करते हैं प्रेजेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी को, तो इट्स ऑलवेज अ 5 पेज 7 पेज, दैट्स इट. मे बी कभी कभी 2 पेजेस 3 पेजेस. द इन्वेस्टमेंट कमेटी को मेमो प्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट जो सेल साइड में है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो मोर डेकोरेटेड है बिकॉज दैट्स एडवाइजरी नेचर. ओके, वहां पे यू आर नॉट पुटिंग योर मनी, बट बाई साइड तो पैसा पुट कर रहे हैं ना. एंड आई नो ऑफ द स्टूडेंट्स, दे वांट टू अल्टीमेटली वर्क ऑन द बाई साइड, ठीक है? Sell side is also very, very lucrative, and most of the jobs on the sell side, maybe you start from the sell side and you have a vision to enter the buy side. This program does not leave anything. It does not leave investment banking, wealth management, private equity, private credit, sell side, buy side. Okay, but believe me, the program aspires to make you a buy side analyst. The program aspires that in 10 years' time, 15 years' time, you may be competent to actually set up your own fund. Okay, I'll talk more about it. Let's go to the curriculum. So Thursday, 8 p.m., IHCL, we are going to discuss. And those who are watching this YouTube, they need to fill up the Google form. Okay. And they also need to fill up the Google form to get the PFC REC, because वो तो अभी है कि सर क्या PFC REC का स्टॉक बाई कर लेना चाहिए, ठीक है? कैसे सोचे उसके बारे में, कैसे एनालाइज करें? ऑब्वियसली पर ये बता दूं, दिस इज प्योरली एजुकेशनल. जैसे अगर अभी का बात करेंगे क्या पीएफसी का शेयर बाई कर लेना चाहिए, वो जो भी डिस्कशन किया हुआ है दैट इज प्योरली एजुकेशनल. इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है? माई सेल्फ इन माई प्रोपराइटरी कैपेसिटी, okay, my family, my friends have invested in PFC REC, so we want to be very clear about SEBI guidelines over here. Okay, this is only for educational purpose. One has to understand the framework, the repeatable framework, rather than cling on to sir ने ये बोला था, ठीक है? I think I made the mistake of speaking about Vocart 1 year ago, and some people bought the stock and really gained as a result of it. But once again, I was talking about it in an educational format. So whatever we do in this program, it is going to be pure educational format. You cannot charge me for the purpose of कि आपने बोला था ये बढ़ गया गिर गया वगैरह, ठीक है ना? And nor can regulators charge me. So this is the investing वाला part, डीप डाइव. और एआई उसके साथ साथ होता रहेगा, आप समझ रहे हैं? हर एक स्टेप में एआई कैसे यूज करें. प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल हु आर इन देयर मिड 50s लेट 50s, they are doing fundamental equity research the same way they were doing earlier. वो लोग जनरली एआई को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं. द एडवांटेज विद द यूथ इज दैट वो लोग एआई में प्रोफिशिएंट है, उनको बेटर समझ में आता है टेक्नोलॉजी. सो दैट इज द प्लेस वे यू आर एबल टू compete with those. ठीक है, आप में ओपननेस है, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स. बट इफ यू थिंक दैट जनरल जीपीटी प्रॉम्प्टिंग कैन टीच यू एआई, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, वो उस तरह से होने वाला नहीं है. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. फर्स्ट वाला मॉडल के बारे में क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम. जो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन है, वो लैंग्वेज है फाइनेंस का, ठीक है? एंड वंस अगेन आई टेल यू, व्हेन यू सिट बिफोर एन इंटरव्यू, स्पेशली मॉड्यूल 4 में, व्हाट हैपेंस इन दैट इज दैट व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, योर रिप्लाई टेक्निकली इज रिटेल लैंग्वेज.
You think that if you tell about the fact that अभी PFC का दाम क्या चल रहा है 420 रुपया, and the other person will be impressed, वहीं पे तो गया. Do you talk about उसका दाम क्या चल रहा है? Do you talk about its market cap 1,40,000 crore? बॉन्ड मार्केट में आई यूज टू टीच कि कुछ बंदे हैं जो बॉन्ड में प्राइस का बात करते हैं, कुछ बंदे हैं जो बॉन्ड में यील्ड का बात करते हैं, और कुछ बंदे हैं जो बॉन्ड में स्प्रेड का बात करते हैं. द मोमेंट यू टॉक अबाउट स्प्रेड इन द लैंग्वेज, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज. मतलब क्लियर कट डिफरेंशिएट हो जाता है द मेन फ्रॉम द बॉयज. ओके, talking in institutional language, the purpose of polishing you to be able to speak in institutional language, to design your CV that way, okay, to understand what they will ask you when they will ask you about one particular investment idea. Okay, simple, one particular investment idea, tumhara kya idea hai, you will crack. You think you will go prepared at home with that idea. You don't know unless and until you have known the skills of how to pick up the idea, how to present the idea, and humble enough to accept that your idea can go wrong. Why? Because ultimately it's about future. That's very important. So financial modeling and valuation may, we have a tremendous faculty, okay, including myself, who will take the sessions. Investing wale mein we have a line of industry experts, okay, from PMSs, AIFs, family offices, okay, who are going to bench this person from Nuvama Fund Management, this person from Ironclad Asset Management, from Rare Enterprises, who are going to take the sessions. I'll show you the same. AI in finance, but similarly, people who have had engineering background, who have spent 10 years into this, they are going to take the session. So this is an industry-led program. Okay, this is not led by me. 75 में से मेरा sessions 10-12 sessions होगा, and it ought to be that way because you need experts. But एक चीज बता दूं, I am going to be the, क्या बोले उसको, the potato in this regard, because जहां पे industry experts, they teach you something which you find sophisticated. In the week there'll be support sessions where I will make good the fact that सही समझ में नहीं आया था, पढ़ाई अच्छा थे, but I did not understand. So I am there to ensure अपने style में कि you understand. So there's going to be that way. I'll talk about the operations later on. And so we have career development. और एक चीज बता दे, career development पे जो module है, nobody should think that सर एक छोटा सा मॉड्यूल करियर डेवलपमेंट पे है. नो, पूरा का पूरा का एक ही पर्पस है. नंबर 1 टू गेट यू अ जॉब, नंबर 2 टू गेट यू अ जॉब विद अ हायर पैकेज, नंबर 3 इफ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब टू help you switch to what you want to switch to. You know what you want to. So the whole purpose of all the 4 modules is job, job, job. But when I say this, I don't feel nice because I think the whole purpose of all this is life skill. कौन ऐसा बंदा है, कौन जिस पर्सन को इन्वेस्टिंग का स्किल्स नहीं चाहिए, जो इन्वेस्टिंग के स्किल्स के बिना वेल्थ जनरेट कर सकता है? नोबडी इज देयर. एक जन बता दो, ठीक है, एनीबडी. So this program, when I come to it, is for whom? It's for everybody. Anyways, let me not digress. So this is the entire modular design of the program. And if you ask me, sir, क्या ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस दुनिया में ग्लोबली कहीं पे भी है? नहीं है. There is no second program in the world which matches this. Okay, it completes the same with utter proficiency, with utter depth. Okay, let's move forward. And therefore it answers the question कि analyst stack is the solution to the problems. दो कैंडिडेट, एक जिसने एनालिस्ट टैक नहीं किया है और एक जिसने एनालिस्ट टैक किया है. कैंडिडेट ए के पास CA CFA है, कैंडिडेट बी के पास प्रोफेशनल फाइनेंस डिग्री है, CA CFA प्लस एनालिस्ट टैक है. क्या डिफरेंस होगा? आप देख लो, एक एक चीज को फील कर लो प्लीज. 15 प्लस सेक्टर्स का नॉलेज देने वाले हैं. ओके, 15 प्लस सेक्टर्स का नॉलेज, whether it's the pharmaceutical sector, whether it is the FMCG sector, whether it is the IT sector, जो IT sector में भी कांड हुआ because of Anthropic, whether it's the cement sector, तो there will be 15 sectors जिनके अंदर डीप डाइव करने वाले हैं. Believe me, nobody does that. Okay, 15 sectors का एक्सपोजर होगा and taken by experts जिन्होंने 10 साल 5 साल उस सेक्टर में बिताया है. Not taken by me कि मेरे ख्याल से सीमेंट ऐसा है. When those people speak, they speak about their experiences, about what happened in a particular situation जब सेक्टर में कुछ हुआ था. ठीक है ना? रियल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस उनका, एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स, AI ड्रिवन फाइनेंस स्किल्स, डीप एनालिटिकल थिंकिंग, कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा का सारा कवर्ड होगा एंड प्लस सर्टिफिकेशन तो होगा ही. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू योर CV एनालिस्ट टैग. When I don't know how much of you are aware, around a month ago, we had a wonderful
एल्यूमिनाई मीट एसएससीआई का 30 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बॉम्बे में. What was the purpose of the meet? Apart from the fact that I wanted to meet with them and greet with them and relive the past moments, the purpose was that these people are working everywhere. You name the company, everywhere they are working. Morgan Stanley, JP Morgan, okay, Blackstone, BlackRock, everywhere these people are working, my alumni, because I don't know how much you know about me. I started teaching way back in 1994. ओके 1994 से स्टार्ट हो गया था. आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब तक. ठीक है. तो दोज पीपल आर नाउ, एंड मेरे से तो बड़े लोग भी मेरे से पढ़े हुए हैं ऑब्वियसली. पीपल हु आर लाइक राइट नाउ 55-60 years, so they are at tremendous helm of affairs. But does it mean that मैं उनको कॉल कर सकता हूँ कि ये बंदा है, क्या आप इसको जॉब पे ले सकते हो? नो, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म. आई कैन नॉट. We set up a community. हम लोग alumni का community set up कर रहे हैं, such that we are telling them about analyst stack. That was the main purpose, so that they understand यार कि हम लोग को जो problem हो रहा है, सर के द्वारा पढ़ाया हुआ person practically हमारे यहाँ आएगा. If that person has skills, definitely have him. Believe me. उन सब से networking चल रही है. In fact, those are the people who are coming forward to teach, and those are the people who will hire. Understood? Because you will have the skills, not because संजय सर बोले हैं. Favoritism doesn't happen. Everything is professional. They will do it for their फायदा, because कहाँ कहाँ वो लोग खोजे कि regarding good candidate मिल जाए. Okay, they want to come to the place where they have learned and they know with what depth I have taught, and I mean it. Next, please. Now, these are the deliverables of the program. These are the deliverables of the programs. If you look at module number 2 का first bullet, mental models. हमारी ये जो mental models है ना, इसमें सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो है ना, उसको करीब 9 या 10 मेंटल मॉडल्स में कंप्लीट कर लेंगे. यू नो, 9 या 10 मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट सिनेमा हॉल्स, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल द लाइक्स ऑफ दीज रिटेल कंपनीज जहाँ पे फिजिकल फुटप्रिंट है, उन सब का एक ही मेंटल मॉडल होता है. ठीक है. You look at the number of stores, you look the same store growth, you look at the store expansion. Okay, so the KPIs are the same in all of them, just अलग अलग वर्ड से बोला हुआ है. तो मेंटल मॉडल्स मतलब कोई बोलता है ना इतने सारे इंडस्ट्रीज है कैसे करें. वी आर गोइंग टू टीच यू अराउंड 9 or 10 मेंटल मॉडल्स, एंड विद दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इंडस्ट्रीज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड बुलेट 15 सेक्टर प्राइमर्स है. 15 सेक्टर प्राइमर्स. सो व्हाट इज अ प्राइमर? सी, एक सेक्टर पे एक्सपर्टीज के लिए तो आपको सालों लग जाएंगे, बट एक सेक्टर का जनरल आइडिया तो होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग दैट बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने सेम तरह से नहीं उठा सकते हैं जैसे अपने उठा सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री को. तो देर आर डिफरेंट नुआंसेस इन दीज इंडस्ट्रीज. द सेक्टर प्राइमर्स बाय द स्टॉलवर्ड्स विल टेल अस कि बेसिक आइडिया आपको सब सेक्टर्स का हो जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू सिट ऑन द इंटरव्यू टेबल एंड द अदर पर्सन कैन सी दैट यार इसको तो सेक्टर्स का आइडिया है, वो पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता है. ही विल बी आफ्टर यू. द पैकेज जो मन में बैठा था ना कि यार मेरे को लगता है इसको 9-10 पे सल्टा देंगे, दैट गोज अप टू 15-20, बिकॉज उसको नहीं मिलता है दूसरा. किसको होता है सेक्टर का नॉलेज? मतलब ये जब मैं बात करता हूं ना विथ माय एल्यूमिनाई, दे टेल मी कि सर दीजिए तो सही ऐसा पर्सन जिसको है. एंड रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है. प्रॉम्प्टिंग का पूरा लाइब्रेरी, एआई प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी मिलने वाला है आपको इसमें. सेक्टर स्पेसिफिक एआई टेम्पलेट्स मिलने वाला है. हर सेक्टर में क्या टेम्पलेट्स, वर्क फ्लो को कैसे इंटीग्रेट कर सकता है एआई, वो सारा होने वाला है इसके अंदर. सर्टिफिकेशन तो है ही, रेज्यूमे टेम्पलेट्स है, लिंक्डइन गेम प्लान है, नेटवर्किंग 101 है. आई टॉक अबाउट मोर अबाउट इट. सो द कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज ट्रिमेंडस. Okay, do we have a slide about the community framework and all that which I have thought about? Let me show. नहीं, पीछे. Okay, very very important. सुनिएगा, पीछे जरा, पीछे, वहीं पे और पीछे. हाँ, very important. Listen, ये प्रोग्राम कैसे होने वाला है, सुनिएगा प्लीज. इस प्रोग्राम में अपने ग्रुप्स बनाएंगे. सपोज 20-20 पीपल का ग्रुप बना लिए, 20-20 जन का ग्रुप, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. और वो 20-20 जन का ग्रुप बनाए जो उसके अंदर 5-5 का सब ग्रुप बन गया. ठीक है. अब वो जो 5 जन की टीम है, दे विल प्रिपेयर एन इन्वेस्टमेंट मेमो एंड इन्वेस्टमेंट थीसिस जो बाई साइड को प्रेजेंट कर सके. तो देयर विल बी एन इन्वेस्टमेंट कमेटी बैठेगी.
और आप जो 5 जन हैं वो पिच करेंगे अ पर्टिकुलर आइडिया। यू हैव टू पिच। 10 मिनट्स का आपको पिच करना है और फिर 5 मिनट का Q&A राउंड हो गया। फिर द सेकंड 5 का टीम जो है वो पिच करेगा। थर्ड, माने जैसे अपने एक्चुअल रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट कमिटी के पास प्रेजेंट करते हैं ना, वो सेम इन्वेस्टमेंट कमिटी का फ्रेमवर्क लाया है। एंड आई डोंट फाइंड इट एनीवेयर, बिलीव मी, कहीं पे नहीं है वो जो स्ट्रेस है इन्वेस्टमेंट कमेटी का। ऑफ कोर्स कुछ कॉम्पिटिशन जरूर होते हैं। मतलब आई हैव आल्सो चेयर्ड नंबर ऑफ जजिंग इवेंट्स। अभी लास्ट वीक IMT गाजियाबाद का था। बट वो जो प्रेजेंटेशन जब देखता हूँ ना, उनमें बहुत फ्लॉ है। मतलब बिलीव मी, उनमें क्या ले रहा है एक बंदा, वो ले रहा है रेवेन्यू का ग्रोथ रेट जो है 40% से बढ़ेगा, और मार्जिन जो है वो 3% से 15% ले लिया। माने मार्जिन 3% था, उसने 15% ले लिया, बिकॉज उसको लग रहा है ये एक्सेल का गेम चल रहा है, वो कुछ भी ले सकता है। So, although I have judged a number of events of this type, and you all have also participated, I know I meet a number of students who say that सर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, बट हॉलो लेवल पे आपको भी अंदर से पता है, जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया था इट वाज डेकोरेशन। जो मेन पार्ट था आपने वहां किया ही नहीं। ठीक है, इट जस्ट टू पुट इट इन द CV, पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। ये वाला रियल होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सब सिखा दिया जाएगा। यू विल बी एबल टू मेक प्रोफिशिएंट प्रेजेंटेशन, और उनमें से ही कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो आप पिच करेंगे। मतलब आई एम टेलिंग यू दैट ये जो इन्वेस्टमेंट कमिटी वाला स्टफ होगा ना, इन्वेस्टमेंट थीसिस वाला, ये सेल साइड रिसर्च रिपोर्ट नहीं होगा 60 पेज का, 120 पेज का रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, ये मैं 22 साइड इन्वेस्टमेंट थीसिस पे जाऊंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट कमेटी को देना है। रियल लाइफ में प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, कोई पार्टनर ज्वाइन कर लेता है न्यूयॉर्क से, कोई पार्टनर टोक्यो से, कोई पार्टनर हांगकांग से, एंड वन पार्टनर इज प्रोवाइडिंग एन इन्वेस्टमेंट थीसिस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। इट हैपेंस दिस वे, एंड देयर आर आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, एंड अल्टीमेटली they decide upon a consensus. It happens at the topmost level, it happens at the rock bottom level. So investment, इसके अंदर अपना कम्युनिटीज बनने वाला है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनने वाला है इसके अंदर, जहां पे आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। बिकॉज इफ यू ज्वाइन अ कॉर्पोरेशन, इट इज नॉट अ टीम ऑफ वन। ओके, टीम ऑफ वन तो मैंने केवल अश्वत्थ दामोदरन सर का सुना है। इट इज ऑलवेज बीन अ टीम विच वर्क्स, जहां 5-7 जन का टीम है जो वर्क कर रहा है एक प्रोजेक्ट पे। ओके, और इन्वेस्टमेंट थीसिस बना रहे हैं। थीसिस, शॉर्ट थीसिस। आपका रिसर्च हो सकता है 100 पेजेस का है, पर आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो 2-4 पेजेस का है। स्पीक इंग्लिश, स्पीक लिटिल, कम्युनिकेट लॉजिक। जैसे मैंने बहुत फटाफट बोला था जब मैंने PFC REC का बोला, पर उसमें एक पॉइंट आपने सुना था कि आई डोंट नो, कि क्या PFC REC जब इंटीग्रेट हो जाएगा, मर्ज, तो क्या वो निफ्टी 50 में इंक्लूड होगा। अब उसका कितना स्टडी चाहिए, निफ्टी 50 का इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, क्या वो लोग अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, और अगर इंक्लूड होता है तो पैसिव फ्लोज कितना आ सकता है उसमें। तो देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट गोज एज सुन एज यू डिग इनसाइड। ठीक है, सो ऑल दैट्स गोइंग टू हैपन। सो ये प्रोग्राम यूनिक क्यों है, व्हाई इज द एमलेस्टैक यूनिक? नंबर वन, ये इंडस्ट्री लेड है। ये इंडस्ट्री लेड है। हियर आई वुड लाइक टू शो यू द industry led participants who are going to take the program. Okay, yeah, this is the team who are going to provide this program to you. You must have heard the name of the 3 people who are besides me in the top row: Krishna Khilla, Sumangal Pugalia, Tarang Agarwal. I've spoken so much about them in all my teachings. Okay. Uh, you would see from their face they are young, but that's what is required, because this young blood would show that abhi kya kaise ho raha hai. You know, people are doing what the other day Krishna was sharing that sir हम लोग जो 8-10 मिड कैप फंड्स है, वो मिड कैप फंड्स का जितना भी होल्डिंग्स है उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन सा कॉमन होल्डिंग जो ये लोग सबका सब लैच ऑन किए, विच आर द स्टॉक्स दैट ऑल ऑफ देम हैव लैच्ड ऑन। ठीक है, और फिर वो स्टॉक बन जाता है हमारा रिसर्च करने के लिए। सो इतना सारा आइडियाज का तरीका है ना, कि इट इज रिक्वायर्ड दैट दोज पीपल हु आर एक्चुअली ऑन द बाई साइड, ओके, डू दैट वर्क। एक सेशन होने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट संडे के संडे, जहां पे इन चारों के साथ अपना सेशन होगा, एंड आई एम श्योर यू विल ज्वाइन द सेम। यू वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम देयर माउथ एज टू व्हाट दे डू, हाउ दे डू, एंड व्हाट इज देयर कंपैरिजन ऑफ व्हेन दे वे योर एज। ठीक है, तो वो लोग कैसे इवॉल्व हो रहे थे, and if this program were that time, so what they would have done. Okay, and all of them are doing pro bono. Please let me tell you, no charges. They are doing it from their heart. ऐसा हम लोग को कराना है ये चीज। ठीक है, नीचे you have Naveen Vaid. Naveen Vaid is a Calcutta guy. Okay,
I remember when I started studying CFA, international CFA के पहले तो मेरा सारा qualifications किया हुआ था ना, MS Finance and क्या बोलते हैं your CTM, CPM, CIB, CIIA, ये सारे प्रोग्राम करने के बाद मैं इंटरनेशनल CFA किया था. तो Naveen was the person who had joined CFA with me. Okay, so he is a fund manager Nuvama. ठीक है. Similarly, this guy Krishna Apala, he's top class brains. Uh, he's a fund manager at Capital Mind. Similarly, about the others, Sanjay Kumar, they are bringing their own domain knowledge expertise. Saurav Kumar, I would really like to mention about him. Saurav Kumar is the one, mane, the moment we actually spoke to him, the moment we saw his profile and we spoke about his vigor, we understood that he's the guy for AI in finance. Okay, AI in finance वो लेने वाले हैं and AI in finance completely module 2 से linked रहेगा. Module 2 में एक topic हुआ idea generation and Saurav Kumar is then taking a session on AI in finance को कैसे use कर सकते हैं idea generation में. Okay, it's top class. We have Anuj Budia, who is a ex IIT Kharagpur, a person who has completed actuarial science, who has invested 4-5 years in quant trading. Okay, we have Pranav Tendulkar, who is a senior analyst at Rare Enterprises. Okay, we have Chinmay Amte. Many of you would know him. He is super energetic and brilliant when it comes to financial modeling. Okay, so he's going to grace our program with that. We have Neeraj Birdia, okay, who is a founder and equity portfolio manager, Arth PMS. So a lot of people from PMS. We have also been able to tie up with Saharsh Damani, who is the CEO of FADA. Okay, brilliant personality. He आए दिन वो पीयूष गोयल एंड ऑल लोग से मिलते रहते हैं. ऑटो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका जो एक institutional perspective he'll provide. We have Mrityunjoy Mukherjee, who is representing FICCI, the vice president of FICCI, and we have Vidyut Kontia. The more I speak about him, it would be less. Believe me, Mane Vidyut is a different beast altogether. I have not seen a person do multitasking as better as Vidyut. I had the privilege of spending 2.5 hours with him on a flight, and he told me when he was graduating from St. Xavier's College and he did not do any certification, and how did he sit for the interview of Uber, and what story was asked by him, how did he move to Dubai, okay, and how did he is a part of many startups, okay. uh, कृष्णा किल्ला ऊपर जो कृष्णा किल्ला थे उनका तो वेंचर फंड स्टार्टअप में कंसल्टेंसी में ब्रिलियंट एक्सपोजर है. ही विल शेयर हिज हार्ट आउट विथ यू. बट इवन विद्युत जो है 10 years younger to him, he will share his story of what happens when a person wants to get in a startup. What are the challenges? What do they want the CV to look like? How is the CV a differentiator? Okay. And he will take you into a different terrain and the relatability will be remarkable. Believe me. Right now, Vidyut is the fractional CEO, in fact, of SSEI, and we are blessed about it, the pace at which our company is moving ahead as a result of Vidyut's vigor, energy, and guidance is on a different level altogether. And I need to speak about Buddhaditya Devnath. You have often heard about him in the last 5-7 years. तो 5-7 साल जो बंदे ने मेरे साथ on an average daily 5-6 hours spent kiya. You can count the number of hours that we have spent together. A person coming from a very humble background and he's right now in a family office doing fund management. They are managing corpus of roughly 1,000 crores, and there are so many good investment ideas that is come up with and created the corpus, increase the wealth of the firm. So he will take some sessions in financial modeling for you. Okay, Vidyut will be shouldering the responsibility of career advancement along with other industry practitioners, and this is what we have. ऊपर चले जाओ. So this is a wonderful profile, and believe me, इसमें और ऐड होने वाले हैं 3-4 लोग, because सबका अपने अपने फर्म से परमिशन लेना पड़ता है. ठीक है. There's a guy from Morgan Stanley. We are speaking to him. In fact, there's a professor from Harvard. We are speaking to him. So there are others who are going to add up over here. But you know, अपना habit अपने हमेशा under commit करते हैं. ठीक है. We over deliver, we under commit. Let's come back. So this is going to be differential or piche because this is industry led. This is going to be differential because this is going to be community driven. जो community driven का मैंने idea दिया.
कि इन्वेस्टमेंट कमेटी प्रेजेंटेशन होगा, ग्रुप्स बनेंगे, एंड दिस विल ऑल्सो पेव वे फॉर इक्विटी रिसर्च चैलेंज, ओके, दैट विल ऑफर। सीएफए इंस्टीट्यूट इक्विटी रिसर्च चैलेंज करता है, बट उसका B2C में क्या बोलते हैं, रिसेप्शन होता नहीं है। यहाँ पे सारा सेट स्टेज है where we can carry out in an all India level. Okay, that is the differentiator, and differentiator is the lifelong lessons that you are going to learn in this program. So they are the differentiators of this program. You can see the deliverables. Uh, Next, okay, operations. बैच 15 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। सर 15 मार्च को क्यों स्टार्ट हो रहा है? अभी स्टार्ट कर देते। Those who are close to me, they know that I was going to start the batch on 15th December. ठीक है, बट परफेक्शन करने में, बेस्ट ऑफ टीम को कलेक्ट करने में, बेस्ट ऑफ क्वालिटी मटेरियल को डेवलप करने में मतलब टाइम लगता है। एंड जो एल्यूमिनाई का नेटवर्क है, वो एल्यूमिनाई का नेटवर्क अभी कल्टीवेट हो रहा है, सो दैट ऑल्दो वी आर नॉट प्रॉमिसिंग कि पक्का जॉब दिला देंगे, बिकॉज ये लैंग्वेज मेरे ख्याल से इज डुबियस, बट वी नो इनसाइड आवर हार्ट, ओके, कि कम से कम जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे ना हर बैच में, जो 5-5 का बैच बनाएंगे, उनको डेफिनेटली इंटरव्यू टेबल पे बैठाएंगे, एंड इंटरव्यू टेबल पे बैठाने के बाद तो जॉब मिलना ही है, बिकॉज मिलेगा क्यों नहीं? देर आर अराउंड 10 lakh people who are scouting for jobs in this industry, but there is noise everywhere, there's no quality, and the quality will be over here. uh, you can see some operational things जो डाउट्स आएंगे, जो मेरा वीकनेस है मैं बता नहीं पाता हूँ, कि लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस है, सारे सेशंस मतलब क्या बोलते हैं, लाइव होंगे सैटरडे संडेज वीकेंड में, सैटरडे को 4 आवर्स, संडे को 4 आवर्स, ठीक है, एंड उसका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगा। इफ यू कांट वॉच इट ऑन द लाइव, यू वॉच इट दैट वे। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट होने वाले बताए तो 70+5 सेशंस हैं, पर दे विल बी एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी में क्या हो रहा है, प्राइवेट क्रेडिट में क्या हो रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट में वंडरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज बन रहा है, वो सारा का सारा होने वाला है। It may so happen that when I'm speaking to Sumangal, okay, and Sumangal takes a session on mental models because he is a champion in mental models, he would like to take an extra podcast with me on mental models. It will same happen with Krishna Killa. वो अपने private equity consultancy का अलग से experience लेंगे। Risk management में there will be a separate session on risk management. So there will be separate sessions apart from the 70 sessions which have been offloaded over here. Weekend batch का बता दिया मैंने, complete at your pace, yes, because you will get an access to this program for the long term. I think वो freeze नहीं हुआ है, करीब 1.5 साल एक्सेस मिलेगा। We will communicate to the participants. Although 4-5 months में प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, बट आपके पास लाइब्रेरी वगैरह पूरा का एक्सेस जिंदगी भर रहेगा, वीडियोस का एक्सेस 1.5 साल 2 साल तक रहेगा। सो यू कैन डू इट एट योर पेस द वे यू वांट, ठीक है, and obviously it is suitable for working professionals because it's taking place on Saturday Sunday. You can do it with a job. ये कोई CFA का प्रोग्राम नहीं है कि पहले आपको 500 आवर्स का लेक्चर सुनना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने हैं एंड सो ऑन। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम, टेक इट विद दैट मैनर। नेक्स्ट, ये डाउट बहुत आ रहा है, ठीक है, हो सकता है काव्या तुम्हारे पास भी आया होगा। लेट मी एड्रेस इट विदाउट आस्किंग यू, हु इज एनालिस्ट टैग फॉर? द पॉइंट इज दैट फॉर whom is it not for? Recently there's a particular student, तो वो स्टूडेंट तो CFA छोड़ दिया, ठीक है, वो क्लियर नहीं किया, पता नहीं उसका नहीं आया, एंड हिज फादर, ओके, हु इज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, ही हैज जॉइंट एनालिस्ट टैग। ओके, बोले संजय जी इसी का तो रिक्वायरमेंट था, कि मैं तो CFA ज्वाइन करने वाला था बिकॉज मेरे को वो प्रोग्राम अच्छा लगता है, बट मेरे को समझ में आ रहा था उसका सेंस नहीं है। अच्छा हुआ आपने एनालिस्ट टैग लाया, एंड दिस गाय द फादर इज अराउंड 54 years old एंड ही हैज जॉइंट एनालिस्ट टैग प्रोग्राम। तो एनालिस्ट टैग प्रोग्राम और उसके फादर ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग मेनी पीपल आफ्टर, मैंने आर्मी के बैकग्राउंड से, लिटरेचर के बैकग्राउंड से, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से लोग इन्वेस्टिंग में आते हैं, बिकॉज पीपल ने कॉर्पस नेटवर्क जनरेट कर लिया। तो इन दैट केस दे वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टिंग बिकॉज इट्स चैलेंजिंग, इट्स मनी मेकिंग, इट्स वेल्थ बिल्डिंग, दे गेट ऑल द किकअप्स, ओके, which you want in investing. तो फाइनेंस स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल कोर्स कैंडिडेट्स के लिए तो है ही, जो CA CFA कर रहे हैं या जो केवल कॉलेज कर रहे हैं, कोई भी कोर्स नहीं कर रहे कुछ। व्हेन आई वेंट टू SRCC लास्ट ईयर, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इन दैट रूम अ स्टूडेंट पोस्टिंग क्वेश्चन टू मी, क्या सर, you have spoken about the CFA program, but sir, for some reason I don't want to do it, I'm not able to do it. So in that case, the area which you are saying, the investing and the great career, I can relate to it. Do you have a program so that I can learn investing without doing the CFA program? Of course, I'm recommending CFA, but otherwise, and I was not able to give a reply to him.
because the programs which are XYZ available, they don't do the job. Believe me, they are making you, what I would say that they are making you enter the industry as a, what to say, as a clerk in the future, as a person who is just doing the errands. होता है ना कि आपको काम दे दिया गया, आप काम कर रहे हैं, वैसा. Of course, उनमें से कुछ ग्रेट चैंपियन होते हैं जो ऊपर राइज कर जाते हैं, बट वो तो सभी चीज में होता है. ठीक है, खासकर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, उनको मैं खासकर बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो एफर्ट लगाते हैं, द एफर्ट दैट यू डू, दैट एफर्ट गेट्स वेस्टेड into just duplication work and regulatory work. Apply your effort in investing and you will rock. Believe me, if for some reason you were not getting into CFA, which you should, in that case, Analyst Tack is the bet for you. जो भी CA final, CA inter students हैं who want to imagine, okay, the best of best in the industry, okay, who want to look at Rakesh Jhunjhunwala and that's an aspiration for you कि मैं भी 50% plus CAGR से 30 साल तक कंपाउंडिंग करूंगा. For them, this is the program. College graduates के तो है ही. Existing finance professionals with 0 to 10 years experience, I know them. In and out मेरे को पता है. जो लोग 4 साल से काम करे, 6 साल से काम करे इंडस्ट्री में, उन लोग के पास स्किल्स नहीं है वो जो चाहिए. And that is why they are stuck up over there. नेटवर्क भी नहीं है जो चाहिए, और नेटवर्क यहाँ बनेगा. Okay, there's a complete community system over here and linking up to our alumni, which will happen over here. करियर स्विचर्स जो है, कितने सारे लोग हैं जो लोग करियर स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम ऑडिट. ठीक है, they want to switch their career from taxation, they want to switch their career from accounting and compliance. I meet them everywhere. बैंगलोर में ही मिला था मैं. वो स्विच करने का तरीका is to do analyst tack. Next, profiles that analyst tack can help you secure. ये भी क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है. प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, नॉलेज सर्विसेज, फिनटेक, ट्रेजरी मैनेजमेंट. बट मेरा सबसे फेवरेट एकदम ऊपर, इक्विटी बाई साइड. इक्विटी सेल साइड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है. ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट में जोर से वॉल्यूम है, ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, डेट मार्केट्स में ओपन अप हो रहा है नीचे. क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग जो मैं अनुज को बोला हूं सेशन लेने के लिए, अनुज बुधिया. एकेडमिया ऑब्वियसली वो भी है. पीपल स्टार्ट टीचिंग द सेम प्रोग्राम. वेलकम एट विद अस और सेपरेटली. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द एंटायर एनालिस्ट ट्रैक का दिस थिंग. नेक्स्ट, so these are the instructors. And this is very, very important. I'll keep the screen frozen. कि ये सब जो प्रोग्राम में आपको बात करने का मन करेगा, टू अंडरस्टैंड और डिटेल में क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह. ठीक है, सो इन दैट केस दिस इज द नंबर. Our counselors have been trained by me for hours and hours together for the purpose of ensuring that a person who reaches out to them for analyst track, he is counseled and educated in all regard. उसको मेरे से लिंक करना, मेरे से बात कराना, मेरे टीम से बात कराना, ठीक है, वो सारा पॉसिबल है. These are the numbers. This is how you reach out to us. So, मैंने थोड़ा पीपीटी ओरिएंटेड आज लिया सेशन, बट वो जरूरी था बिकॉज द प्रोग्राम इज प्रोफेशनल. आई कैन नॉट जस्ट ओपन द व्हाइट बोर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग एंड टीचिंग दैट वे. इट डजंट वर्क दैट वे. सपोर्ट सेशन पे वैसा कुछ करेंगे. I think I've covered everything. Why analyst track and what is the solution it wishes to solve and how does it solve the solution? Why is it differential as compared to anything else available on this planet? And who are the instructors? Operational part, कब कब classes होगी, कब नहीं होगी. ठीक है. Yes. काव्या, based on the Q&A tab, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने एड्रेस कर दिया है, उसको मत लेना. पहले वो क्वेश्चन लेना जो मैंने एड्रेस नहीं किया है. Okay, sir. Sir, one question that is pertinent and a lot of people have asked it, giving their background, is that they have a CFA level 1, level 2, level 3 exam or an FRM exam coming up. So should they do it with their exam, before their exam, after their exam, alongside their course? This is a pertinent question that a lot of people have. I was having dinner with my daughter who had come from US and her friend. And her friend had the starters and then we started the main course, but he waited. And he said that I'm spacing it out. The point is that जो लोग CA, CFA multiple program करते हैं या लोग जो लोग analyst tag करेंगे, spacing it out is important. But at the same time, it's important to remember
दैट ये प्रोग्राम एक वैसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपको उतने आवर्स देने पड़ेंगे. देयर आर जस्ट गोइंग टू बी 70 सेशंस, 70 into 2, 140 hours. And those also you can spread across 1.5 साल 2 साल. So if you do the math, it hardly is anything. You have to understand this way. चलो मैं सैटरडे संडे लाइव सेशन लेने का कोशिश करूंगा. अगर नहीं ले पाया तो मैं उसका वीकडेज में मेकअप कर लूंगा. मेरे पास 4-5 मंथ्स में तो लाइव लेक्चर्स हो जाएंगे, पर मेरे पास एक्सेस रहेगा हमेशा के लिए. मेरे ख्याल से जो लोग अपने जब कॉलेज स्टूडेंट्स को करने बोल रहे हैं तो सीएफए लेवल 1 वालों को तो करना ही चाहिए. लीप लेवल 2 लेवल 3 उनका तो मस्ट है. अगर मेरा वैसा होता ना बस चलता, आई वुड हैव फोर्स्ड देम. लेवल 1 वाले स्टूडेंट जो अभी अभी कल सीएफए ज्वाइन किए हैं, okay, they are the ones that should approach the program because that program is commonsensical. Investing is the most commonsensical discipline. uh, Whenever your exams are there, you slow down the pace of analyst stack and you do it after the exam. Next exam, do it after the exam. तो यू हैव टू प्लान इट दैट वे. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीएफए लेवल 2 स्टार्ट किए, उनका सीएफए लेवल 2 नवंबर में ड्यू है. तो नवंबर में ड्यू है तो ठीक है, उसके लिए पढ़ना है, पर कितना पढ़ना है भाई? इफ यू डू द हिसाब, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, जैसे आपने हेज फंड का मेरा लेक्चर्स देखा, और आप प्रैक्टिकली अगर पीएफसी आरईसी को अभी स्टडी नहीं करोगे तो कब करोगे? बिकॉज आप तो चाहते हो ना आप तुरंत जॉब में लग जाओ. काश 1 Jan 27 से यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर इक्विटी बाई साइड फर्म और सेल साइड फर्म, ओके, और इन्वेस्टमेंट बैंक. यू आर स्ट्रेट अवे वर्किंग. हमारा काम है आपको इंटरव्यू टेबल पे पहुंचाना, ठीक है, और हमारा काम है खासकर आपको इंटरव्यू टेबल पे रॉक करना, ठीक है. तो आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए. जिस तरह का इंटर्नशिप्स लोग कर रहे हैं, द इंटर्नशिप्स दैट पीपल आर डूइंग इन कॉलेजेस, दैट्स पैथेटिक. नॉट दैट आई एम सेइंग नहीं करना चाहिए, बट वो तो वो होता है ना कि क्या करे, देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट द बेटर अपॉर्चुनिटी. And believe me, there are only that much of students who will actually get the skills, because not everybody, we are not a good advertising company. We do not market a lot. So those of you who get into it, get into the groove of it, will have a unparalleled advantage over anybody else. क्या सर ये प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर वापस से लाइव होगा क्या? बिलीव मी, मेरे को नहीं पता, बिकॉज मैं टीम को कैसे कब इकट्ठा करूं, ठीक है. तो मेरे को नहीं पता. आई कांट प्रॉमिस अबाउट कि 6 महीने बाद फिर से चालू होगा क्या, या 2 साल बाद फिर से चालू होगा क्या. नो प्रोमिसेस व्हाटसोएवर. अभी है, अभी रिदम में जो कंटेक्चुअली यही पढ़ाया जाएगा. इंडिगो का फियास्को हुआ था दिसंबर में, दैट वी आर गोइंग टू कवर. तो जाहिर है जब आप उसको लेट से करते हो 2027-28 में, तो आपको थोड़ा सा वो पुराना लगता है, जैसे IHCLI पुराना लग रहा है, ठीक है. तो बट आपको अभी REC PFC एकदम नया लगेगा कि अभी हो रहा है यार, ये तो अभी का बात कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अभी का. तो प्रोग्राम अभी करना चाहिए. Okay, you should understand the importance of your life career along with your certification, and the effort got to come and the intent got to come. If the intent is not there, suppose you're not passionate about this entire field, you should not do. अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इन्वेस्टिंग में, कोई भी हालत में नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट दैट प्रोग्राम, ये कर लोगे हम ये दे देंगे. ओके, इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल दैट वे इन नेचर. इट इज creating the skills. Okay, you got to look at it from a perspective of a lifelong skill which has been taught to you. तो अभी से करना चाहिए. यस काव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, one more pertinent question that a lot of people, namely Karan, Amit, there was Richa, a lot of people asked us that will this help them give job opportunities in US, UK, or is it only relevant for the Indian markets? Because there are a lot of people who live abroad. So, who are the people who will be benefiting out of this? Is it only the people living in India? ओके, लेट मी गिव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. बहुत सारे प्रोग्राम्स जो ग्लोबली है ना, विच ट्राई टू टीच प्रैक्टिकली, उन प्रोग्राम्स में इंडियन केस स्टडीज एकदम भी नहीं लिया जाता है. उनमें केवल फॉरेन केस स्टडीज लिया जाता है. उनमें इंडियन रेगुलेशंस को टच ही नहीं करता है. सारे स्टेटमेंट्स वगैरह सब चीज, जैसे अपने CFA प्रोग्राम करते हैं उसमें भी ऐसा होता है. ये तो बता दूं मैं, एनालिस्ट टैक प्रोग्राम में जो केस स्टडीज वगैरह लेंगे उनमें बायस इंडिया का होगा. ओके, वी आर जनरली गोइंग टू टेक इंडियन केस स्टडीज वगैरह. हाउएवर, जो स्किल्स यहाँ पे सिखाएंगे और कुछ केस स्टडीज जो लेंगे वो फॉरेन की भी होगी, ग्लोबल भी होगी. तो दोज हु आर एक्चुअली लिविंग अब्रॉड, रिचा, करण, अमित, जो भी आपने बोला, मतलब अब्रॉड वाले तो सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं. जिस दिन मैंने अनाउंस किया ना अपना, मैंने अनाउंस नहीं किया, जिस दिन फर्स्ट वेबसाइट पे लिस्ट हुआ था, द फर्स्ट सेल वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ओके, पास्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड, बिकॉज उनके लिए मतलब इट्स सो इजी. आई शुड नॉट स्पीक इन दैट टर्म्स, बट अमाउंट वाइज इट बिकम्स एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. वैसे सबके लिए आर्बिट्राज है, बट उनके लिए तो स्पेशली आर्बिट्राज.
There are people who are spending maybe 60 lakhs, 70 lakhs per annum studying abroad. 60 lakhs, 70 lakhs per annum, if you did not hear it properly. मेरी daughter जो पढ़ रही है Cornell में, I think we spend around 90 or 95 per annum on that education. She's studying physics, by the way. So I mean to say that this program by you is like a no brainer at all. You should definitely do it. मेरे को याद है जब 2020 में मैंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग डेरपो स्टार्ट किया था, डेरपो, तो उस केस में बहुत जन बाहर के स्टूडेंट ज्वाइन किए थे. व्हाई? बिकॉज उनको ट्रेडिंग करना था एंड दे वर गेटिंग सच अ वंडरफुल कोर्स प्रैक्टिकल एट सच अ लो प्राइस. सो रिचा एंड ऑल दैट, आप लोग को जो जॉब चाहिए वगैरह, इट विल डेफिनेटली. नाउ यू आस्क मी कि सर एसएससीआई जो है उसका जो सर्टिफिकेशन है वो उस तरह तो रेप्यूटेड नहीं होगा ना? रेप्यूटेड होगा. कहाँ नहीं है, हम लोग कैसे बताऊं? मॉर्गन स्टैनली में सुमेर बजाज इज देयर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली. ओके. ब्लैकस्टोन इंडिया का हेड इज माय स्टूडेंट. व्हाट? आशीष मोहता. सो वेयर आर दे नॉट देयर? यू टॉक अबाउट द टॉप फर्म्स, दे आर देयर. ठीक है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो स्किल्स है ना, उसके हेल्प से आप रॉक कर दोगे. वी टीच यू अ रिपोर्ट जो कि इंडियन कंपनी का है. यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ फॉरेन कंपनी. इनफैक्ट जो फॉरेन वाले हैं ना, ये लोग, इनका अपने ग्रुप अलग बना लेंगे, 5-5 का ग्रुप, सो दैट आप फॉरेन कंपनीज में प्रेजेंटेशन देना इन्वेस्टमेंट कमेटी को. ओके, बिकॉज इंडियंस हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंपनीज. ओके, मैक्स 7 के पीछे तो पागल हो रखे, ऑल्दो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट. तो डेफिनेटली वर्थ इट, यू शुड गो फॉर इट. काव्या. Yes, sir. Sir, I know you've answered it briefly, but the major question that most of the people, Mehul, Ashish, Manmeet, Rohan, among the many others had was, is the program for them? They have shared their background. Everyone has shared their respective details, what they are currently doing. There are people who have switched. There are people who are living abroad, want to move to India. There are people who are living in India, want to move abroad. People who are currently working with 10 years of experience. Is it for them? How do I tell you that? How do I tell you? मैंने अपने लाइफ में जो भी पढ़ा, मतलब आई रिमेम्बर हमारे एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स में जहाँ पे सम्स थे. You know, the cost function is given, we have to calculate MC. The demand function is given, we have to calculate MR equal to MC, equilibrium and all that. ISLM, in case you have heard about it, उसमें C plus I plus G plus X minus M का sums. मतलब, and I used to often think that वो मेरे क्या काम आएगा. एंड हर एक चीज प्रैक्टिकली काम आता है. थियरी का तो बात ही क्या है. मतलब, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, हु इज इट फॉर. मैंने, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके फादर इन्वेस्टिंग करते हैं एंड he he thinks that he is a long term investor, he picks up stocks and really want to hold them for the long term, tell him to join the program. आपकी तो बात ही क्या है. आपका तो ये फायदा है कि इसमें जो एआई इन फाइनेंस वाला मॉड्यूल है ना, दैट्स गोइंग टू बी अ किलर. कांट एक्सप्लेन टू यू. बिकॉज एआई, जैसे मैं बहुत इंकरेज करता हूँ क्लासेस में, बट स्टूडेंट्स लोग किस लेवल पे यूज कर रहे हैं? जीपीटी लेवल पे यूज कर रहे हैं. स्टूडेंट्स आर नॉट यूजिंग एआई इन द एंड मैं भी उतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, इफ यू आस्क मी कि आपको आता है क्या. नो. मतलब, वो जो सौरभ कुमार का सेशंस है, आई एम गोइंग टू अटेंड द सेशंस विथ यू, and I am really looking forward to attending the sessions with you, सौरभ कुमार जी का, because वो सेशंस करने से मेरा भी प्रोफिशिएंसी एआई में बढ़ेगा. Okay, let's be very frank about it. So there are a lot of lessons to be learned. मतलब, मैं बोलना चाह रहा हूँ, how do I say, if I was listening and I could see such a program coming from the stable of somebody whom I believe in, because you know what happens. So in that case, I would jump into the program. Okay, तो मैं खुद ज्वाइन कर लेता, तो आपकी तो बात ही क्या है. तो आई हैव केप्ट माई लेक्चर्स डेडिकेटेडली. 70-75 में से 10-12 सेशंस वो वाले जिनमें मेरा एकदम पीएचडी लेवल ग्रिप है और मैं प्रैक्टिकली बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ. बट आई केप्ट द अदर सेशंस फॉर ऑल दी अदर्स जिन्हें को लगता है मेरा लैक होगा. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू लर्न. तो आई एम रेडी टू लर्न. व्हाई वोंट यू? काव्या. So that is mostly about it. You've answered most of the questions, and now I can see the DMs flooding with now. They're excited to join, and they've answered all the questions that they needed to and wanted to from this webinar. I would just like to bring a question and answer it. That कैसे समझाऊं मैं? I'm telling you, when somebody thinks about the cost of the program, and I want to be upfront, मैं चीजों को ढक के नहीं बोलता हूँ. 50,000 for SSCI students, 60,000 for non-SSCI students. This cost is nothing compared to what you're going to get. Nothing. मतलब
CFA प्रोग्राम में अपने शायद 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख CFA इंस्टीट्यूट को दे देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग सर्टिफिकेशन चाहिए, देना पड़ता है, वरना द सर्विस दैट दे प्रोवाइड वी आल्सो नो व्हाट इज द स्टेटस। सीए का तो बात ही क्या है। यहाँ पे आपको जो स्किल्स मिल रहा है वो जिंदगी भर आपको हेल्प करने वाला है। आपको जॉब चाहिए, वो स्ट्रेट अवे आपको जॉब दिलाने वाला है। आपको जॉब स्विच करना है, जॉब स्विच करने वाला है। रिमेंबर दिल्ली में एक फीमेल थी, वाज वर्किंग इन S&P कैपिटल IQ। हर पैकेज इज अराउंड 26 lakhs। S&P कैपिटल IQ ब्रांड सॉलिड, पैकेज 26 लाख। लोगों को बने खासकर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं ना, अच्छा लग रहा होगा, वाह यार। आई कांट टेल यू, शी इज पेन्ड, PAINED। शी knows what she is doing. She doesn't like that. She was telling me, sir, how to come out of it. There was another chartered accountant in that same Delhi का वेबिनार, जो लोग याद कर रहे होंगे अगर वो लोग बैठे हैं दिल्ली वाले तो, ठीक है, जो वंस अगेन 32 के पैकेज में है, बट डूइंग मंडेन वर्क। ये 32, 26 पता नहीं, ये फिगर्स दिखते हैं, इसलिए मैंने अभी एक बार भी फिगर नहीं बोला। यू सॉ समथिंग, बिकॉज मेरे को लगता है ये सब एस्पिरेशन होनी नहीं चाहिए। इस इन्वेस्टिंग वाले फील्ड में एस्पिरेशन स्ट्रेट अवे गोज टू 1 CR प्लस, उसके नीचे कुछ नहीं है। एंड साहब, ये पॉसिबल है क्या? अरे यही तो पॉसिबल है सर, बट इतना कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं है, बेवकूफों का कंपटीशन है, जिनको आता नहीं है। एक बार आप ये जान जाओ, उसके बाद आप देखोगे पीपल कैन नॉट लीव यू। ओके, योर करियर पाथ गोज लाइक एनीथिंग। मतलब इट इज, जो जिंदगी भर करना चाहते थे कर नहीं पाए बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड थे। वो इस बार मौका मिला, आई एम सुपर सुपर डिलाइटेड। हम लोग उस पे पढ़ते थे, क्या नाम है, जूलियस सीजर में, द आइड्स ऑफ मार्च। ओके, 15th of March. So it is the Ides of March that a new paradigm is going to reshape the way in which financial education, investing education happens in this country. Those who believe in me, those who have faith in my integrity and my competence, they will never think twice. If you don't join this program, this is a miss of the century for you. Believe me. Everyone should join the program. There are people who may say that, sir, मेरे पास थोड़ा फंडिंग का कंस्ट्रेंट है। आई डोंट थिंक आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। फंडिंग का कंस्ट्रेंट नहीं होता है। प्लस देर आर फंडिंग, क्या बोलते हैं, सपोर्ट अवेलेबल। अपने हमारे काउंसलर से आप अगर कंसल्ट करोगे तो फंडिंग का सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, जहाँ पे EMIs विल बी अरेंज फॉर यू। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेम, अगर वैसा इशू आ रहा है तो, ठीक है। एट माई लेवल व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं जब प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जैसे मैंने इंडियन CFA ज्वाइन किया वे बैक इन 1994। इंडियन CFA का कॉस्ट था उस समय 10,000, फर्स्ट लेवल का 10,000। 94 की बात कर रहा हूँ। वो 10,000 आई एम श्योर आज के दिन 1 लाख से कम नहीं है। एंड आई वॉज कमिंग फ्रॉम सच फाइनेंशियली स्टाफ्ड फैमिली, आई कांट एक्सप्लेन, कुछ नहीं। एंड आई वॉज टीचिंग। मैं 70 रुपया में पर मंथ पढ़ा रहा था लोगों के घर जाके, और वो पैसा इकट्ठा करता था। मैंने कभी ये होने नहीं दिया कि मैं कोई हालत में अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँ पैसे के चलते। तो जो ही बोलना है ना कि पैसे की प्रॉब्लम है वगैरह है, आप देखोगे दायां बायां आपके पास स्कोप है खुद अर्न करने का। ये मैं खासकर अपने जैसे लोगों को बोल रहा हूँ। वैसे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ओके, who can easily do, but if the kick is not coming from your inside, please don't do it. रिक्वेस्ट है, ओनली दोज डू द प्रोग्राम। बिकॉज देखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। कोई मेरे को बोलेगा कि सर इस प्रोग्राम में डेफिनेटली आप चैंपियंस को निकाल देंगे क्या? कहाँ से निकालूंगा? कोई पर्सन सपोज ऐसे ही ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम को, ठीक है, और वो कुछ इंसेंटिव ही नहीं है उसको, उसको पैशन पैशन ही नहीं है वगैरह, क्या मैं उसको, मैंने आई डोंट हैव द माइदस टच कि मैं जिसको टच करूंगा सोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन ओनली मेक चैंपियंस आउट ऑफ पीपल हु हैव द भूख, ठीक है। Money cannot be cited as an issue of not doing the program. It cannot be, and it should not be. If it is being cited, in that case, you are not having the vision for it. Believe me. If I have done it in such dilapidated condition, you are definitely in much better condition than I was. Not doing the program is not at all rationalized. It must be done. I believe we'll see you, number one, on this Thursday for the IHCL ka wonderful session, जिसमें 10 times compounding हुआ. We have webinars lined up every Sunday with our team, and हर एक webinar में सीखने का है।
सर मैंने ज्वाइन कर लिया अगर प्रोग्राम, तब भी मेरे को ये सेशन देखना है कि एकदम देखना है? बिकॉज कोई सोचेगा ना सर अभी ज्वाइन कर ले तो 15th मार्च तक क्या मिलेगा? अरे 15th मार्च तक देयर इज अ फ्लड ऑफ मटेरियल विच इज गोइंग टू बी शेयर्ड विथ यू, ठीक है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, प्री वर्क दैट इज हैपनिंग व्हेन यू स्टार्ट द प्रोग्राम 15th मार्च। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मैं 14th मार्च को ज्वाइन करूंगा, वंस अगेन दैट इज स्टुपिडिटी, ठीक है? You start getting into the groove of the program right now. Why do you wait for 14th March, okay, to join the program? So that's all from my side. If it seemed that मैं थोड़ा सा salesy था, I was trying to sell. The point is that I made up my mind today कि मैं जरा सा भी अपने आप को hold back नहीं करूंगा while talking about the program, because मेरे को पता है मेरे इस मोटिवेशन से, मेरे इस बोलने से अगर कोई पर्सन जो नहीं ज्वाइन करता ज्वाइन कर लेता है, उसका लाइफ कैसे चेंज होने वाला है, ठीक है? तो आई विल नॉट होल्ड बैक ऑन दिस प्रोग्राम एट ऑल, कोई भी हालत में नहीं। Hope to see you, number one, on the 15th of March when the program starts, and number two, on this Thursday for the IHCL ka session. Do fill up the Google form, especially those who are watching on YouTube. Thanks for attending. आपका संडे अच्छा जाए और रेस्ट ऑफ द संडे को भी प्रोलिफिकली एंजॉय कीजिए, ठीक है? कुछ पकड़िए, पीएफसी आरईसी का स्टडी करना चालू कीजिए, ठीक है? थैंक यू। Those who want PFC REC का material, please do fill up the Google form when you are watching on YouTube, because this is like a, होता है ना सर, अभी ये तो इन्वेस्टिंग है, एक बार देख लेते तो डिसाइड कर पाएंगे whether इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। थैंक यू।